बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और उनकी कितनी कैटेगरीज़ हैं, किस किस्म की कैटेगरीज़ हैं, कैसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। ये हमारा आज का टेबल ऑफ कंटेंट है। हम देखेंगे कि व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस, मैनुअल एंड टच इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, वॉइस इनपुट हम कैसे दे सकते हैं कंप्यूटर को, बॉडी से, स्किन से और गेस्चर से इनपुट किस तरह से दी जा सकती है, इमेज एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, वर्चुअल रियलिटी इनपुट डिवाइसेस एंड सो ऑन। What are input devices? A piece of equipment used to provide data and control signals to the information processing system such as a computer or information appliances. ठीक, यानी हमारे पास अगर कंप्यूटर मौजूद हो तो कोई भी डिवाइस जो कि इनपुट प्रोवाइड कर रही होती है, एक्चुअली वो सिग्नल प्रोवाइड कर रही होती है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर उन सिग्नल को प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। इनपुट डिवाइसेस कैन बी कैटेगराइज्ड डिफरेंटली कंसिडरिंग इट्स डिफरेंट फीचर्स। For example, manual and automatic input devices, discrete and continuous input devices and so on. इस स्लाइड में हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि माउस एक पर्टिकुलर इनपुट डिवाइस जो मैंने सेलेक्ट की है वो क्या है और कैसे काम कर रही है, किस तरह से वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है। Now we look at the details of. If you're watching this video on a computer, then I would assume that you used your mouse to do so by moving your cursor and clicking on the thumbnail. Now, have you ever wondered what exactly it is inside of your mouse that allows it to replicate the movement of your hand to the movement of a little cursor on your screen? If you have, then you're in the right place, because that's what I'll be going over for this video. To start with, I'll be talking about optical mice, which are pretty much the only kind that are still in use today. If you hold the mouse slightly above the surface it's on, you might notice a little red glow, and even if you don't see that, you can still see that your mouse has a little hole in it, like mine does right here. Inside that hole, there's an optical sensor that is essentially just a tiny little camera with an extremely fast frame rate. That is to say, it takes a ton of pictures per second. There's also a small illuminating light, usually an LED, that illuminates the surface beneath it which the mouse is placed on. This little camera in your mouse constantly takes pictures of the illuminated surface it's on and then compares that picture to the previous one. By comparing these two images, the computer has all the information it needs to figure out how far your mouse has been pulled along the surface and in what direction. The resolution and frame rate of the camera in your mouse determine how accurate, smooth, and reliable the cursor movement is. If the mouse took only 100 pictures per second and you moved your mouse really fast, it might have a completely different image than the one it had just before with no overlap. And as a result, it'll have no way of knowing where the mouse is in relation to where it was beforehand. As a result, it won't be able to properly replicate that movement onto your screen. Now likewise, if its resolution were too low, let's say only 50 dots per inch, it might have trouble comparing the features that define the surface that it's placed on, and will get confused. You'll see here that the mouse has actually moved further than the camera realizes, but because it has such a low resolution, it basically has to make assumptions about how specific that movement actually was. It's for this reason that in most optical mice, the camera actually has a frame rate of at least 2,000 pictures taken each second, though some can have as much as 6,000. And they have a resolution of about 1,600 pixels per inch and can have as many as 4,000. While 2,000 images per second might seem mind-blowing, keep in mind that neither your mouse nor computer have to store these images. Once one frame is compared to the previous frame is immediately discarded, so no data storage is needed. It's worth noting that the technology in optical mice was actually pioneered by the military for tracking targets from aircraft. The calculations on how much the mouse has moved and in which direction are all done by very simple processing chips in the mouse itself, and then it sends that information to your CPU. Your computer does the rest of the work from here with that data and translates it into the actions you see on your screen. These calculations in your CPU occur in what's known as the kernel, which is one of the lowest levels of operating systems in your computer. This handles all the fundamentally important instructions that keep your computer functioning, including being able to receive control inputs such as the mouse. This is why sometimes when your programs freeze up for a moment, you can still move the mouse just fine. That process is given priority over all else because without it, you couldn't even interact with the computer to begin with.
While optical mice are the norm today, there was a time when ball mice were the norm. Now these mice, instead of using a small little camera and LED, had a rubber ball placed in the middle of them, which rolled around as you pulled the mouse across a surface. And as this ball rolled, it caused these two little adjoining wheels to turn as well, which gave your mouse all the data it needed about how it was moving on a two-dimensional X and Y plane. You may also have seen some of the mice that are controlled by actually rolling a big ball around with your fingers. And these mice use the exact same mechanical system, but have the advantage of being able to be used in situations where you didn't have access to a large flat surface. And that concludes this video. If you're interested in more videos on the topic, liking and sharing is a good way to let me know that, and feel free to leave a comment with any questions you may have. जी, तो हमें समझ आ गया कि माउस किस तरह से काम कर रहा है, उसकी हमने किसी हद तक डिटेल्स को देख लिया। अब हम देखते हैं कि मैनुअल इनपुट डिवाइसेस, माउस भी एक मैनुअल इनपुट डिवाइस है, तो उस को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। डिवाइसेस विच अलाउ द डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ द यूज़र, आप हाथ इस्तेमाल करते हुए या कोई भी और बॉडी पार्ट इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। अ कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ़ कीज़ और बटन्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास नंबर पैड है जिसके ऊपर सिर्फ नंबर्स दिए हुए हैं और इनको हम क्लिक करके नंबर्स को एंटर कर सकते हैं। यही काम हम यहाँ पे मौजूद कीज़ को भी इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। ये कीज़ मौजूद हैं, ठीक। इसी तरह से हमारे पास और भी कीज़ मौजूद हैं। मसलन यहाँ पे ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर में अल्फ़ाबेट्स इनपुट कर सकते हैं। और इसी तरह से बैक स्पेस डिलीट, उसको रिमूव करने के लिए किसी भी कैरेक्टर को इस्तेमाल होता है, ठीक। कंट्रोल आल्ट और ये इस किस्म के स्पेशल जो कीज़ हैं इनके अपने फंक्शंस हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस में ये डिफ़ाइन होते हैं। यहाँ पे हमें जो फंक्शन की नज़र आ रही हैं F1, F2 अप टू F12, ये कीज़, इनके भी स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो कि हर एप्लीकेशन अपने लिहाज से डिफ़ाइन करती है। इसी तरह से यहाँ पे हमें एक मखसूस पैड नज़र आ रहा है, ठीक, जिसमें मुख्तलिफ़ कीज़ हैं, मसलन पेज अप, पेज डाउन, डेल एंड वगैरह वगैरह। एरो कीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन पे मौजूद कर्सर को लेफ़्ट और राइट मूव करने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि ये मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन है नोटपैड, इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर कुछ लिखूँ दिस इज़ टेस्ट, और अगर मैं बैक स्पेस की प्रेस करूँ तो ये देखें कि वो डिलीट हो जाता है। और अगर कर्सर को मैंने यहाँ पे लेफ़्ट मूव किया यूजिंग द एरो की, और अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हैं कि हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करेंगे तो वो सारा डिलीट हो जाएगा। कीज़ को हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं एंड सो ऑन। ये मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हैं जो कि इन मुख्तलिफ़ बटन्स को इस्तेमाल करते हुए हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम यहाँ इस वीडियो में थोड़ा सा देखते हैं कि कीबोर्ड एक्चुअली किस तरह से काम करे, कैसे सिग्नल जनरेट करके ये मदरबोर्ड को भेजते हैं और मदरबोर्ड फिर प्रोसेसर को वो सिग्नल देते हैं ताकि उसको वो प्रोसेस कर सके। Now let's learn how does a keyboard work. While typing, when any key is pressed, you see the corresponding result right onto the screen. Ever wondered how does a computer come to know which key is pressed, or who informs the monitor to display the keystroke pressed? In the following section, we will have a detailed look at the working of the keyboard. To begin with, when a key is pressed, the plunger attached to the key pushes the spring or the rubber dome inside the plunger downwards. The pressure of the fingertip in pressing the key leads to the plunger down on two electronic contacts. When these two contacts come together, the electricity flows through them in circuit. When you lift your finger, the spring moves up, lifting the key upwards, and the electric circuit is broken. Now, the signal produced by two contacts coming together is passed on to the chip called as microprocessor. The microprocessor holds a scan card. The pressed keystroke is matched with the scan card. Then, the microprocessor passes this acquired information to RAM.
Based on the keystroke pressed, the signal is then passed from the system to the monitor. And finally, the result is the character displayed on the screen. ओके तो हमने कीबोर्ड की वर्किंग को भी देख लिया। अब हम पॉइंटिंग डिवाइसेस माउस की तरफ दोबारा मूव करते हैं। आल्दो हम माउस के मतलब पहले से थोड़ा देख चुके हैं, थोड़ा और इसमें देख लेते हैं। माउस इट इज़ यूज टू पॉइंट अ लोकेशन ऑन दी आउटपुट स्क्रीन एंड देन अलाउज इंटरेक्शन विद इट। आम तौर पे अगर आपने कंप्यूटर को कभी भी इस्तेमाल किया है तो आपका माउस से वास्ता पड़ा होगा और आपको पता होगा कि माउस किस तरह से इस्तेमाल होता है और उसका यूज़ क्या होता है। करंट माउसेज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 अपसाइड बटन्स, एक बटन ये वाला है और एक ये वाला बटन है, 2 बटन इसके होते हैं। लेफ्ट माउस बटन इज़ यूजुअली यूज टू सेलेक्ट समथिंग, ये वाला जो है किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए आमतौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। राइट माउस बटन यूजुअली डिस्प्लेज अ पॉपअप मेन्यू फ्रॉम विच द डिफरेंट एक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पॉपअप मेन्यू है। ये मेन्यू मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर मुख्तलिफ तरह की होगी। ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप राइट क्लिक करें, जिस जगह भी आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करें तो एक ही पॉपअप मेन्यू सामने आए। दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। द पॉपअप मेन्यू मे चेंज डिपेंडिंग अपॉन वेयर एंड व्हेन द राइट क्लिक इज डन। द अपसाइड व्हील इज़ यूज टू स्क्रॉल द स्क्रीन। आप तौर पे आपको ये एक छोटा सा व्हील भी नज़र आ जाता है माउस के साथ लगा हुआ, तो ये व्हील जो है वो स्क्रीन को स्क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट लिख दूँ, ठीक है, और आई जस्ट मेक इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे देखें डिफरेंट किस्म की पॉपअप मेन्यू आ रही है क्योंकि एप्लीकेशन डिफरेंट है। किसी और एप्लीकेशन में आप राइट क्लिक करेंगे तो उसमें पॉपअप मेन्यू डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ देखें कि मैं व्हील को मूव करता हूँ तो आप देखें कि पेज जो है मेरा स्क्रॉल हो रहा है, कभी ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, कभी नीचे वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 1 और मैंने इसको नीचे स्क्रॉल किया तो अब ये लाइन नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 42 तक हमें नज़र आ रहा है। तो इसको हम स्क्रॉलिंग बोलते हैं, पेज को ऊपर नीचे करने के प्रोसेस को। देयर आर वैरायटी ऑफ मॉडल्स दैट हैव बीन लेस और मोर फंक्शनैलिटी। माउस के बहुत सारे मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ आपने पिछली स्लाइड के ऊपर देखे, और हर एक की फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत एक दूसरे से डिफर कर सकती है। पॉइंटिंग डिवाइसेस, हेयर आप इन सब को काइंड ऑफ माउस ही कह सकते हैं, लेकिन उनमें चूँकि फंक्शनैलिटी डिफर करती है तो इनके नाम भी थोड़ा सा डिफरेंट हैं। जॉयस्टिक, ये आपको जॉयस्टिक यहाँ पे नज़र आ रही है, इसको हम जॉयस्टिक बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग अपहेल्ड स्टिक कार्ड हैंडल। इसका एक बाहर निकला हुआ हैंडल होता है जिसको पकड़ के आप लेफ़्ट राइट और ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, और उसी तरह से जैसे आप इसको घुमाएंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन में भी कर्सर उसी तरह से ऊपर नीचे, ये कोई करैक्टर या कोई वीडियो गेम की कोई चीज़ जो है उसके मुताबिक ऊपर नीचे ये मूव कर जाएगी। इट गिव्स द डायरेक्शन इन विच द हैंडल इज़ मूव टू द सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर को बताता है कि किस डायरेक्शन में करैक्टर को मूव करना है। यूजुअली दीज आर यूज्ड इन वीडियो गेम्स। It also contains some buttons on it. The functions of each button is specified by the game that you are playing. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इसके ऊपर बटन भी लगे हुए हैं और हर बटन का काम जो है वो डिफरेंट गेम्स के अंदर डिफरेंट तरीके से हो सकता है। ठीक, जब आप अगर आप गेम्स प्ले करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि जॉयस्टिक कैसे काम करती है। इसी तरह से हमारे पास एक और मैनुअल इनपुट डिवाइस है जिसको हम कहते हैं ट्रैक बॉल। तो जॉयस्टिक से नीचे जो है ये आपको ट्रैक बॉल नज़र आ रही है, इसको हम अपसाइड डाउन माउस भी कहते हैं, यानी ऐसा माउस के जो उल्टा हुआ है। आम माउस में ये बॉल जो है वो नीचे की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पे ये बॉल ऊपर दिखाया गया है, और ये 2 बटन वही हैं माउस के जो आम तौर पे लेफ़्ट और राइट बटन्स होते हैं और वही काम तकरीबन करते हैं। इट कंटेन्स अ बॉल हेल्ड इन द सॉकेट बाय मूविंग बॉल इन डिफरेंट डायरेक्शंस वन कैन मूव द माउस ऑन द स्क्रीन। तो ये जो ब्लू आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा नुक्ता मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम माउस कर्सर कह सकते हैं। Then we have a game pad.
द इनपुट डिवाइस इज़ यूज टू प्ले द गेम। तो ये गेम पैड है और आम तौर पे बच्चे इसको अगर आपके घर में कोई बड़ी हाई लेवल की गेम्स इंस्टॉल्ड हैं या उसके टर्मिनल्स मौजूद हैं तो आप इन गेम पैड्स को इस्तेमाल करते हुए गेम्स को खेल सकते हैं। और इवन इन गेम पैड्स को आप अपने मोबाइल के साथ, स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके भी गेम प्ले कर सकते हैं। डिफरेंट बटन परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क बेस्ड ऑन द गेम बीइंग प्लेड। तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ किस्म के बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं और हर बटन का मुख्तलिफ काम होगा हर गेम के अंदर। डिफरेंट गेम में डिफरेंट उसकी फंक्शनैलिटी होगी। पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्टीयरिंग व्हील एक और हमारे पास इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कार का व्हील होता है, का स्टीयरिंग होता है और उसके साथ पैडल्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टीयरिंग व्हील है, ठीक। ये बिल्कुल पैडल्स हैं जिसमें क्लच है, ब्रेक है और रेस है और ये आपके पास गियर और इस किस्म की दूसरी चीज़ें हैं। अमूमन ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं वीडियो गेम्स को खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसको आप जॉयस्टिक समझ सकते हैं और यहाँ पे इस छोटी सी वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि कैसे जो है हम गेम पैड्स को और स्टीयरिंग व्हील्स को यूज़ करते हुए वीडियो गेम्स प्ले कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इस डेमोन्स्ट्रेशन को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूज़र किस तरह से स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहा है और साथ पैडल्स को भी जो मूविंग कर रहा है, ब्रेक लगाना है उसको रेस देना। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग है कि आप बिल्कुल जैसे कार मूव की जाती है वैसे ही आप सिमुलेशन के जरिए से वीडियो गेम्स को प्ले कर सकते हैं जैसे स्टीयरिंग व्हील, जॉयस्टिक और इस किस्म की दूसरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि स्टीयरिंग व्हील किस तरह से काम कर रहा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। टच इनपुट डिवाइसेस, बहुत सारी ऐसी इनपुट डिवाइसेस हमारे पास मौजूद हैं कि जिनको हम टच करके इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें जो बहुत कॉमन किस्म की डिवाइस है वो हमारे पास स्मार्टफोन है। और स्मार्टफोन पे तकरीबन आप में से हर एक बंदे को पता होगा कि किस तरह से हम उसको टच करके उसके ऊपर इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से अब हमारे पास कंप्यूटर्स में भी टच स्क्रीन्स मौजूद हैं, वहाँ पे टच करके जो है इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। हेयर इज़ मैकडोनल्ड का एक जो है मेन्यू दिखाया गया है। जो बड़े मैकडोनल्ड स्टोर्स हैं, होटल्स हैं, वहाँ पे टच स्क्रीन्स लगी होती हैं और आप वहाँ खड़े होकर अपनी मर्ज़ी की मेन्यू खुद चॉइस कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल के आप प्रेजेंट कर सकते हैं जो भी डिलीवरी बॉय है या सर्विस काउंटर के ऊपर, तो वो आपको आपकी मनपसंद चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह से अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप के ऊपर भी जो सर्विस होती है इसको हम टच एरिया होता है, यहाँ पे आप टच करके माउस को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ये टच पैड आपको माउस लैपटॉप के साथ जुड़ा हुआ भी मिल जाता है, या ऐसा टच पैड जो है आप स्पेशली अलग से भी ले सकते हैं मार्केट से और उसको कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं। उस टच पैड के ऊपर आपको एक स्पेशल किस्म का पेन मिल जाता है जिससे आप सिग्नेचर्स कर सकते हैं, चीज़ें राइट कर सकते हैं, ग्राफिक ड्राइंग कर सकते हैं, लॉट ऑफ। टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वर्क्स लाइक माउस, राइट। तो ये बेसिकली ऐसे ही होता है कि जहाँ से सिग्नल जनरेट होते हैं, जैसे माउस सिग्नल जनरेट करके भेज रहा होता है मदरबोर्ड को और वहाँ से आपके प्रोसेसर को, तो इसी तरह से ये टच पैड भी सिग्नल जनरेट करते हैं जो कि मदरबोर्ड को जाते हैं और मदरबोर्ड से फिर वो प्रोसेसर को चले जाते हैं और प्रोसेसर फिर उनको प्रोसेस कर लेता है। लाइट पेन बेस्ड इनपुट, मुख्तलिफ़ किस्म के लाइट पेन या मुख्तलिफ़ किस्म के पेन्स इस्तेमाल हो रहे हैं मार्केट के अंदर, जिनमें एक डिजिटल पेन है जैसा कि ये टॉप पे आप देख सकते हैं। इट कैप्चर्स द एनालॉग हैंड राइटिंग और ब्रश स्ट्रोक्स
of a user and converts it into digital data, enabling the data to be utilized in various applications. ठीक है, जिस तरह आप पेपर के ऊपर राइट कर सकते हैं तो आप इसी तरह से डिजिटल पेन को भी यूज़ करते हुए आप लिख सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. Then there is the smart pen. It is similar to the digital pen but has more features like text scanning and voice recording etc. तो एनहांस वर्जन ऑफ जो डिजिटल पेन है उसको हम स्मार्ट पेन भी कह सकते हैं. फिर हमारे पास आता है लाइट पेन. अ पेन लाइक इनपुट डिवाइसेस विच इज़ लाइट सेंसिटिव एंड इज यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर्स एंड बाय टचिंग द स्क्रीन. तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक लाइट पेन यूज़ हो रहा है, किस तरह से हम इसको टैबलेट की स्क्रीन के ऊपर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं टच करने के लिए, ताकि हम इनपुट प्रोवाइड कर सकें. देन वी हैव द टेक्स्ट पैड्स. तो ये देखें, ये आपके पास टेक्स्ट पैड और ग्राफिक पैड दोनों किस्म के मार्केट में अवेलेबल हैं. दिस इज़ द मेटल और द ग्लास सरफेस अपॉन विच यूजिंग लाइट पेन टेक्स्ट कुड बी रिटन. और ग्राफिक पैड उससे ज़्यादा अच्छा और एनहांस्ड होता है कि सिर्फ टेक्स्ट कैप्चर नहीं करता बल्कि आप उसके ऊपर तस्वीरें भी बना सकते हैं, ग्राफिक भी डिज़ाइन कर सकते हैं और कम्प्लेक्स इलस्ट्रेशंस ड्रा कर सकते हैं. तो मुख्तलिफ़ किस्म के पेन, 4-5 किस्म के पेन आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं. नेक्स्ट वी हैव वॉइस साउंड इनपुट, कि हम किस तरह से कंप्यूटर को वॉइस या साउंड इनपुट दे सकते हैं. वी हैव फर्स्ट वन मीडी आर वॉइस कीबोर्ड्स. तो यहाँ देखें कि ये हमारे पास डिजिटल म्यूज़िक इनपुट कीबोर्ड्स हैं कि आप कीज़ को प्रेस करते हैं और ये USB से जुड़ा हुआ है आपके कंप्यूटर के साथ, तो वो कीज़ की जो साउंड है वो कंप्यूटर को चली जाती हैं. इट्स अ पियानो स्टाइल इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िकल कीबोर्ड. इसी तरह से ये आपको एक दूसरा कीबोर्ड नज़र आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे भी आप बटन्स को प्रेस करते हैं तो वहाँ से करैक्टर कोड जाने की बजाय साउंड कोड जाते हैं और कंप्यूटर साउंड को प्रोसेस करता है. देन मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइस जो वॉइस के ज़रिए से हम करते हैं दैट इज़ माइक्रोफोन. और माइक्रोफोन का इस्तेमाल आप अमूमन करते रहते हैं. अगर आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी स्मार्ट या नॉन स्मार्ट, तो उसके अंदर माइक्रोफोन लगा होता है और आप उसको इस्तेमाल करके अपनी वॉइस को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं. इट इज़ वेरी कॉमन ऑडियो इनपुट डिवाइस और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसने इसको इस्तेमाल ना किया हो. देन वी हैव वॉइस रिकग्निशन सिस्टम, कि हम कंप्यूटर को जो है अपनी आवाज़ से ऑर्डर दे सकते हैं. मिसाल के तौर पे हम कंप्यूटर को कह सकते हैं कि जी टाइप दिस, और हम फ़िक्रा बोलें तो कंप्यूटर उसको टाइप करना शुरू कर दे. ये जैसे ओके गूगल आपके पास एक एप्लीकेशंस हैं, या एक सीरी एप्लीकेशन है, या इस किस्म की जो है और दूसरी एप्लीकेशंस मौजूद हैं कि जिनको आप वॉइस कमांड के ज़रिए से ऑर्डर दे सकते हैं और वो उसको फुलफ़िल करते हैं या परफॉर्म करते हैं. इसी तरह से वॉइस बेस्ड आइडेंटिफिकेशन हमारे पास एक और मैकेनिज़्म है कि कंप्यूटर जब आप बोलें तो कंप्यूटर समझे कि कौन बोला है. ठीक है, मिस्टर ए बोला है, मिस्टर बी बोला है, मिस्टर सी बोला है. तो एक तो हमारे पास स्पीकर आइडेंटिफिकेशन है, फिर वॉइस आइडेंटिफिकेशन है, फिर उस वॉइस आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक उसकी वॉइस रिकग्निशन एंड सो ऑन. तो इसी तरह से हमारे पास वैरायटी ऑफ वॉइस एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में. ठीक है, जिनको जो कि आवाज़ को आइडेंटिफाई करके प्रोसेस करती हैं. ठीक, आफ्टर दैट वी हैव इमेज इनपुट डिवाइसेस. हमारे पास मार्केट में बहुत सारी इमेज इनपुट डिवाइसेस एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें जो बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं इमेज की, दे आर द इमेज स्कैनर्स. इस किस्म के स्कैनर्स मौजूद होते हैं, इनको हम फ्लैट बेड स्कैनर्स बोलते हैं. इट ऑप्टिकली स्कैन्स इमेजेस, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंड राइटिंग आर एन ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द डिजिटल इमेज. ठीक है, कि इमेज को स्कैन करके और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे दिया जाता है. फ्लैट बेड स्कैनर्स जैसे ये मौजूद है हमारे पास. इस तरह से शीट फेड स्कैनर्स, यहाँ पे देखेंगे हम इसको शीट फीड करते हैं और वो इस यहाँ से पूरी की पूरी शीट गुजर जाती है और कंप्यूटर उसको साथ साथ स्कैन करता रहता है. तो जब पूरी शीट इसमें से गुजर जाती है तो एक बड़ी पिक्चर कंप्यूटर में कैप्चर होके आ जाती है, हमें मिल जाती है और हम उसको अपने जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना होता है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं. इसके बाद हमारे पास है इंटीग्रेटेड स्कैनर्स. तो अब आम तौर पे स्कैनर्स हमें जो है मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के साथ जुड़े हुए नज़र आ जाते हैं. मिसाल के तौर पे ये प्रिंटर है, तो प्रिंटर के साथ स्कैनर भी जुड़ा हुआ है कि आप प्रिंट करने के साथ साथ उसको स्कैन भी कर लें, इमेजेस को, चीज़ों को, मुख्तलिफ पिक्चर्स को, लेटर्स को, डॉक्यूमेंट्स को. इमेज इनपुट डिवाइसेस के अंदर फर्दर हमारे पास ड्रम स्कैनर्स आते हैं. यहाँ पे देखें कि ये ड्रम स्कैनर्स बहुत बड़े लेवल के या बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स वगैरह को अगर आपने प्रिंट करवाना हो तो आप ड्रम स्कैनर्स के ज़रिए से उसको करा सकते हैं और ये मार्केट में कमर्शियल बेसिस पे स्कैनर्स इंस्टॉल होते हैं.
देन वी हैव द पोर्टेबल स्कैनर्स। ये देखें, ये आपके पास एक पोर्टेबल स्कैनर है जिसमें से बिल्कुल शीट फीड की तरह से हम डॉक्यूमेंट को गुजारते हैं और वो इसको स्कैन कर लेता है। फ़र्क ये है कि जो प्रीवियस हमारा शीट फीड स्कैनर था वो एक टेबल पे हम उसको इंस्टॉल करके रख देते हैं, लगा के रख देते हैं, जबकि ये हमारा पोर्टेबल होता है, इसको हम उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास बारकोड स्कैनर्स होते हैं, ठीक है, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ द हैंडी, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लें। आमतौर पे अगर आप बड़े स्टॉल्स में गए हों, मार्केट्स में गए हों और वहाँ पे आपने शॉपिंग की हो, तो ये स्कैनर्स लगे होते हैं जहाँ पे चीज़ों के बारकोड रीड करके ऑटोमेटिकली आपका बिल जनरेट हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास स्मार्ट कार्ड्स या मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स मौजूद होते हैं, जिनको हम इस किस्म के स्कैनर से जब गुजारते हैं तो वो इसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेते हैं। तो ये भी एक किस्म के स्कैनर ही होते हैं। इनपुट मेथड्स यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है वो कैसे काम करता है। ये इस किस्म का ब्लैक एरिया जो है कार्ड के ऊपर, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है, ठीक। देन वी हैव अ CVV और वेरिफिकेशन नंबर, आमतौर पे इस एरिया में वो दिया हुआ होता है, ठीक। सिग्नेचर पैनल, यहाँ पे यूज़र ये जो कार्ड होल्डर है वो अपने सिग्नेचर करता है, ठीक। रिपीटेड एंड कलर्ड नेम्स वगैरह वगैरह मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई होती है, एम्बॉस्ड कैरेक्टर्स एंड ETC। जब हम इस कार्ड को स्कैनर में से गुजारते हैं, जैसे ये स्कैनर में से गुजारा जा रहा है, तो ये देखें कि ये जो ब्लैक स्ट्रिप है, ये ब्लैक स्ट्रिप वहाँ से गुजरती है और उसके ऊपर मौजूद इन्फॉर्मेशन को जो है ये स्कैनर रीड कर लेता है और उससे पता चल जाता है कि ये किसका कार्ड है और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। आमतौर पे हम इसको शॉपिंग के लिए, ATM मशीन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम इस कार्ड को ATM मशीन में डालते हैं तो वो ATM मशीन भी इसको यहाँ से रीड करती है इन्फॉर्मेशन को और आपके अकाउंट को आपके सामने ओपन कर देती है। स्मार्ट कार्ड्स एक और इनपुट मेथड हमारे पास, ठीक है। इट इज़ अ फिजिकली इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन डिवाइस यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ रिसोर्स। इट इज़ टिपिकली अ प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड साइज्ड कार्ड विद एन एम्बेडेड इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन चिप। फ़र्क ये होता है कि इसके ऊपर मैग्नेटिक स्ट्रिप नहीं लगी होती, बल्कि ये एक IC या इंटीग्रेटेड सर्किट लगा हुआ होता है, ठीक है। और इस सर्किट को हम या तो बाहर किसी मशीन के ऊपर स्कैन करा देते हैं या मशीन के अंदर इंसर्ट करा के यहाँ पे इस जगह के ऊपर उसको इंसर्ट करा के और मशीन उसको रीड कर लेती है। तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है एज़ कम्पेयर टू द मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। ये एग्जांपल आपको नादरा के CNIC कार्ड की दिखाई गई है, अदरवाइज़ ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं मार्केट में। आप कहीं पे मेंबर बन जाते हैं किसी बड़े स्टोर के एंड सो ऑन, तो वो आपको स्मार्ट कार्ड्स दे देते हैं और उसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है उसको पुट करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स हैं, इवन अब तो डेबिट कार्ड में भी ये चिप्स आना शुरू हो गई हुई हैं। देन वी हैव क्विक रिस्पॉन्स कोड। अ क्विक QR कोड, ये जिसको हम क्विक रिस्पॉन्स कोड कहते हैं, इज़ अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स बार कोड और 2-dimensional बार कोड फर्स्ट डिज़ाइन इन 1994 फॉर द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री इन जापान। तो ये आपको एक QR कोड या क्विक रिस्पॉन्स कोड जो है उसकी तस्वीर नज़र आ रही है। A barcode is a machine readable optical label that contains information about the item to which it is attached, ठीक है। आमतौर पर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर ये लगा होता है, जैसे ये देखें कि ये एक किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ है और जब हम कंप्यूटर में इसको स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर इसको स्कैन करके इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन को रीड कर लेता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। QR codes often contain data for a locator, identifier or tracker that points to a website or the applications. There are several standards that cover the encoding of the data as QR codes. यानी ये जो QR कोड जिस एक ख़ास तरीके से कोड बनाया गया है, इसके कई स्टैंडर्ड हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से ये बनाया जा सकता है। हर एक की इंटरप्रेटेशन डिफरेंट होती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मौजूद है। वीडियो इनपुट डिवाइसेस अब हम देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिजिटल कैमरा है जिसके साथ हम बहुत पहले से वाकिफ़ हैं, ठीक। हम पिक्चर्स ले सकते हैं, वीडियो से रिकॉर्ड कर सकते हैं। Then we have digital camcorder, webcam. A web camera is a camera that can capture the video streams, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कि ये वेब कैम आमतौर पे दिखाया गया है और मार्केट में भी वेब कैम्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो तो आप वेब कैम को आमतौर पे यूज़ कर लेते हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपको वेब कैम अलग से लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो अमूमन लैपटॉप के अंदर वेब कैमरा जो है वो बिल्ट इन होता है। इसी तरह से अगर आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे वेब कैम्स मिल जाते हैं, कैमराज उनके साथ अटैच होते हैं जिनको इस्तेमाल करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है, पिक्चर्स बनाई जा सकती हैं, भेजी जा सकती हैं एंड सो ऑन। और ये आपके पास एक कन्वेंशनल
जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कैमरा है जहाँ से आप तस्वीरें बना के मूवीज़ प्रोफेशनल लेवल की डेवलप कर सकते हैं. देन देयर इज़ द माइक्रोसॉफ्ट काइनेक्ट. इट कैन परफॉर्म रियल टाइम गेस्चर रिकग्निशन. गेस्चर क्या होता है कि जब आप कैमरे के सामने खड़े होकर मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत करते हैं, हाथों को मुख्तलिफ़ तरीके से हिलाते हैं, बॉडी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हिलाते हैं, तो वो अंडरस्टैंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं या आप उस बॉडी मूवमेंट से किस किस्म की कमांड कंप्यूटर को देने जा रहे हैं. ठीक. माइक्रोसॉफ्ट कनेक्ट दिस डिवाइस, राइट. सो it can recognize the gestures, speech recognition और body skeletal detection up to 4 people परफॉर्म कर सकता है. यानी हम विजुअल इनपुट दे सकते हैं अपने कंप्यूटर को, अपनी बॉडी को मूव करके. जैसे हम आमतौर पे कोई हमसे पूछे कि आपने ये काम किया तो हम सर हिला के उसका जवाब दे देते हैं. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए ये डिवाइस मार्केट्स में मौजूद है. बॉडी गेस्चर इनपुट. इट इंटरप्रेट्स ह्यूमन गेस्चर्स वाया मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स. यहाँ पे देखें कि एक बच्चा जो है हाथों की हरकत को मूव कर रहा है, तो उसकी हरकत जो मूवमेंट जो है वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर रहा है और उसको कोई ना कोई मीनिंग जो कि एप्लीकेशन के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ट इन है, वो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. गेस्चर्स कैन ओरिजिनेट फ्रॉम एनी bodily motion or state but commonly originates from the face or head. यानी हम अपने जिस्म के किसी भी पार्ट से जो है गेस्चर्स को जनरेट कर सकते हैं और कंप्यूटर को इनपुट उससे प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हाथों की हरकत से और चेहरे की हरकत से हम उसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं. इमोशन रिकग्निशन फ्रॉम फेस एंड हैंड गेस्चर रिकग्निशन, ये उसकी एप्लीकेशन है. Many approaches have been made using cameras and computer vision algorithms to interpret sign languages. इनको हम आमतौर पे साइन लैंग्वेज भी बोलते हैं. ठीक. द आइडेंटिफिकेशन एंड रिकग्निशन ऑफ द पोस्चर, गेट, प्रॉक्सिमिक्स एंड ह्यूमन बिहेवियर्स आल्सो लाइज इन द गेस्चर रिकग्निशन. यहाँ पे आप इस दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लड़का जो है वो खड़ा हुआ हाथों की हरकत से डिसाइड कर रहा है कि गाड़ी को लेफ़्ट मूव करना चाहिए या राइट मुड़ना चाहिए. ठीक. इसी तरह से यहाँ पे देखें कि एक लड़का बैठा हुआ जो है अपने हाथों की हरकत से कंप्यूटर के सामने, कैमरा लगा हुआ है, कैमरा उसकी गेस्चर्स को रिकग्नाइज कर रहा है और वो जैसे ही ऐसे हरकत दे रहे हैं अपने हाथों को, वैसे ही वो वीडियो गेम में मौजूद गाड़ी रन कर रही है. ये एक और हमारे पास एप्लीकेशन है गेस्चर रिकग्निशन की, कि जहाँ पे हम कंप्यूटर के सामने मौजूद लगे हुए कैमरे को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरा लगा हुआ है और इस कैमरे के ऊपर जो है वो हाथ के मूवमेंट की जाती है, वो कैप्चर हो रही है और कैप्चर होने के बाद उसके मुताबिक कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है. तो आप देख सकते हैं कि कैमरे के ऊपर जो है किस तरह से ये कैमरा लगा हुआ है, तो इसके ऊपर हाथ की मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है और फिर जो एल्गोरिदम या जो तरीका कंप्यूटर के अंदर बिल्ड किया गया है उसके मुताबिक वो उस हाथ की हरकत को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है. रोबोटिक आर्म. ठीक है, रोबोट का एक आर्म. ठीक. तो यूँ आप इसको गेस्चर के ज़रिए से इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं कंप्यूटर को. बायोमेट्रिक इनपुट्स. बायोमेट्रिक का मतलब ये होता है द डिवाइसेस दैट आइडेंटिफाइड द पर्सन बेस्ड ऑन इट्स बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वो हमारे आँख के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, वो हमारी हाथ की उंगली के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, वो हमारे अंगूठे के जो उसके ऊपर लाइनें बनी हुई हैं वो हो सकती हैं, एंड मैनी मोर. These input devices include finger input, thumb recognition, face recognition, eye gaze tracking कि आप स्क्रीन के ऊपर कहाँ पे घूर रहे हैं तो उसके मुताबिक कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर दिया कि आप कहाँ देख रहे हैं और क्या इनपुट देना चाहते हैं. इसको हम आई कंट्रोल्ड असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी कहते हैं. आई रेटिना इनपुट, पाम प्रिंट इनपुट एंड पाम वेन्स इनपुट. ठीक है, दिस इज़ द पाम प्रिंट इनपुट. और ये वेन्स हैं कि आपके हाथ में मौजूद वेन्स किस शक्ल की हैं तो उसको आइडेंटिफाई करें. हर बंदे के हाथ में वेन्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस बंदे का हाथ है. ठीक. यहाँ पे इस तस्वीर को देखें, ये तस्वीर एक बहुत मशहूर अमेरिकन साइंटिस्ट की है. ठीक, जिसका नाम स्टीफन हॉकिंग है. तो स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा साइंटिस्ट गुजरा है जो भी रिसेंटली इसकी डेथ हुई है.
ये अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को मूव नहीं कर सकता था, खुद डिसेबल हो चुका था, सिर्फ इसके आँख की पुतलियाँ हरकत करती थीं। तो इसके सामने एक ऐसा कंप्यूटर इंटरफेस बना के लगाया गया कि जहाँ इसके आँख की पुतलियों की हरकत को आइडेंटिफाई करके कि कहाँ पे ये देख रहा है और कितनी देर देख रहा है या क्या देख रहा है, तो उसके मुताबिक ये कम्युनिकेट करता था आउटर वर्ल्ड के साथ। और इसने स्टीफन हॉकिंग ने इसी हालत में बैठे हुए कई किताबें भी लिखी हैं। वो कंप्यूटर को इनपुट देता था, यहाँ देखें कि ये उसके सामने इस किस्म का पैनल मौजूद होता था जहाँ पे उसकी आँखों की पुतली की मूवमेंट को आइडेंटिफाई करके और वो उसकी पूरी जो वो कहना चाहता था वो बात जो है कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र हो जाती थी। और इस तरह से उसकी बुक्स लिखी गई हैं। बहुत अच्छी बुक्स हैं, मार्केट में भी अवेलेबल हैं और आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ज़रा इसकी एक आध बुक डाउनलोड करके पढ़ने की कोशिश करें और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि एक डिसेबल आदमी अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट में से गुजरा है और आप माशाल्लाह बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे हैं, आप डिसेबल भी नहीं हैं, किसी बड़ी प्रॉब्लम का शिकार भी नहीं हैं, तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हम फेस रिकग्निशन की बात करते हैं तो हर बंदे के फेस का जो है माथे की चौड़ाई, लंबाई, आँखों की चौड़ाई, लंबाई, नाक का साइज़, उसके तो ये फीचर्स डिवर करते हैं। तो इन फीचर्स को देख के आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये बंदा कौन है। तो बायोमेट्रिक इनपुट्स के हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स हैं, जिनके डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए से हम इनपुट कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। आई गेज़ ट्रैकिंग, यहाँ पे आपको जो है इस वीडियो में दिखाया गया कि किस तरह से आई गेज़ आँखों के ज़रिए से कहाँ पे देख रही है स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन के ऊपर लगे हुए कैमरे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद जो कमांड सिर्फ आँख के देखने से दी जा रही है वो कमांड को उसके ऊपर एग्जीक्यूट किया जाता है। Eye tracking is a technology that is used to see where a person is looking on a computer screen. The technology can also be used to control a computer. Instead of using a traditional keyboard and mouse, you control it by using your eyes. Illuminators in the eye tracker send out near-infrared light that is reflected by your eyes. A camera registers these reflections, and through filtering and advanced calculations, we can determine where on the screen you are looking and then place the computer cursor consistently and accurately. There are certain things that set Tobii Dynavox eye trackers apart from others. Besides an unprecedented patent portfolio and many technical details, one is the fact that we use a unique and very accurate 3D model of a human eye. With this model, you don't need to keep your head still when using a Tobii eye tracker. In fact, you can move your head freely without any significant loss of precision or accuracy. This is particularly beneficial for individuals with uncontrolled head movement, such as those with cerebral palsy. For accurate eye tracking, the eye tracker needs to find your pupils. This can be done through either bright or dark pupil tracking. Bright pupil tracking works similarly to when you get red eyes using a compact camera with a flash. By placing the flash, or in this case the illuminators, farther away from the lens, you can avoid this. This is dark pupil tracking. Tobii Dynavox eye trackers are unique in that they dynamically switch between bright and dark pupil tracking, so you'll always have an optimized eye tracking experience. There are many other things that make Tobii Dynavox eye trackers unique. To learn more, please visit tobiidynavox.com. जी, तो हमने थोड़ा सा देख लिया आइडिया कि कैसे जो है आई ट्रैकिंग या आई गैस से जो है हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Then we have sensor based inputs. There are number of sensors based inputs method designed for computer systems. ठीक है, छोटे छोटे सेंसर्स जो है वो लगे होते हैं और वहाँ से इनपुट जो है एनालॉग फॉर्म में आ रही होती है और उस एनालॉग फॉर्म को फिर डिजिटल में कन्वर्ट करके देखा जा रहा होता है। जैसे टेम्परेचर है, ठीक, प्रेशर है, फ्लो है मुख्तलिफ़ चीज़ों का, लेवल सेंसर्स हैं, प्रॉक्सिमिटी एंड डिस्प्लेसमेंट है, बायो सेंसर्स हैं, इमेज सेंसर्स हैं, गैस एंड केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो सेंसर, सेमीकंडक्टर, दूसरी चीज़ें लगी हो सकती हैं, एक्सेलरेशन सेंसर्स हैं एंड अदर्स। मिसाल के तौर पे इसमें हम एक सिर्फ मिसाल ले लेते हैं जो कि प्रेशर की है। तो हमने किसी जगह पे एक सेंसर लगाया हुआ है तो वहाँ उस जगह के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर की वैल्यू को ऑटोमेटिकली वो जो है ट्रांसफ़र कर देता है कंप्यूटर को सेंसर, और कंप्यूटर उसको लेके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोसेस कर लेता है।
Finally, we have brain-computer interface, BCI. It is a direct communication pathway between an enhanced and wired brain and an external device. यानी हम अपने दिमाग में जो चीज़ सोच रहे होते हैं उसको डायरेक्ट हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं और कंप्यूटर उनको इंटरप्रेट करके देख सकता है कि हम क्या सोच रहे हैं. Due to the cortical plasticity of the brain, signals from the implanted prosthesis can, after adaptation, be handled by the brain-like natural sensors or effector channels. यानी ये जो कैप इस बंदे ने पहनी हुई है, दिमाग से छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे सिग्नल निकलते हैं. उन सिग्नल्स को ये कैप पकड़ के उनको एनहांस करके इन तारों के ज़रिए से कंप्यूटर तक भेज देती है और फिर कंप्यूटर में बना हुआ सॉफ्टवेयर ये आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ से सिग्नल आ रहा है और उसका क्या मतलब है. EEG brain wave data has shown high levels of success in classifying. ठीक है, मेंटल स्टेट्स मिसाल के तौर पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी मेंटल स्टेट हमारी क्या है, रिलैक्स्ड है, न्यूट्रल है, ये कंसंट्रेटिंग है. मेंटल इमोशनल स्टेट्स को हम देख सकते हैं, नेगेटिव है, न्यूट्रल है या पॉजिटिव है. और आम तौर पे इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एक बड़ी डोमेन है जिसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग लगा के उसके एल्गोरिथम्स लगा के हम मुख्तलिफ फेजेस से इंफॉर्मेशन को गुजार के ये क्लासीफाई कर सकते हैं कि हम इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं. और यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं. Imagine moving a mechanical arm by just thinking about it, or playing a video game using only your mind. Yes! Although it may seem like science fiction, scientists and engineers have been developing this technology for decades. It's called Brain-Computer Interface, or BCI. The field of brain-computer interfaces relies on the ability of the brain to be able to generate certain types of responses that can then be harnessed by computers, to be able to be interpreted by computers. Dr. Rajesh Rao is a neuroengineer and director of the Center for Sensory Motor Neural Engineering at the University of Washington and is funded by the National Science Foundation. He is developing safe, non-invasive devices that can connect to the brain to accomplish things like controlling a prosthetic arm or sending commands to a computer. Looking at the development of this whole field of brain-computer interfaces is to think of it in terms of studying how the brain controls the body. Whether it's telling the legs to jump in the air or activating glands to produce sweat, the body's actions and functions are controlled by neurons. They communicate information to and from the brain and the rest of the nervous system using chemical and electrical signals. And so they're sending these electrical pulses to each other and eventually to the muscles that are then controlling my body. Much like how the brain controls muscles, researchers can use new technologies to tap into these signals to control machines. The understanding of how the brain controls movement led to the development of devices and algorithms that can be implemented on a computer that recognize these patterns in the activity of brain cells and then correspondingly move an artificial device. To demonstrate how this technology works, Rao and his team of students use a BCI that allows them to study nonverbal communication. First, the student is fitted with an electroencephalogram, or EEG cap, which is a series of electrodes placed on the scalp to record brain signals. We need to get Grimes reference now. Okay. 48. When a question appears on the monitor, the student answers yes or no by looking at one of the flashing lights, which are blinking at different frequencies. When the subject's eyes focus on one of the response lights, the frequency of that specific light is picked up by the visual cortex in the brain and measured by the EEG cap. 12 hertz represents a yes frequency, while a no is at a frequency of 13 hertz. Now you can see a peak here at around 12 hertz because no is for 12 hertz. The computer interprets this signal and moves the cursor in the direction of the response. Using an EEG cap isn't the only way to measure brain activity. Some BCIs use a method called electrocorticography.
It also records brain activity, but unlike the EEG cap, it is surgically placed directly on the surface of the brain, providing a clearer signal and more precise information. For example, they can imagine moving their hand, and we use a computer to extract the patterns that correspond to imagined movement of the hand compared to, for example, not imagining and just resting. From there, the computer can distinguish the two types of brain activity: imagining movement and not imagining movement, then use that information to enable hand control by mental activity. Given the right kinds of information and the right kinds of devices that are useful for the animal or for the human, the brain can start to adapt. With practice, the brain can learn to do something it's never done before, like control a prosthetic it's not familiar with. But the key is to understand how these neural networks communicate between the brain and the body. So if you're able to understand the brain better, then you're also able to build better brain-computer interfaces, because then they can use those signals that are responsible for different kinds of movements. As Rao continues to collaborate with engineers, neuroscientists, and neurosurgeons to develop more BCI devices, he is working toward a future where the brain and technology come together seamlessly.